أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بچوں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو ہے نقطوں کے بارے میں، حرفوں کے بارے میں بتایا تھا کہ قاعدہ کو شروع کرنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں الف سے لے کے یا تک حرفوں اور نقطوں کو پہچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا قاعدے میں، تمام بچے انگلی رکھ لیجیے گا قاعدے کے اوپر۔ اس کے بعد آتا ہے یا کے بعد امتحان، اس کا نام ہے امتحان۔ امتحان کا مطلب ہوتا ہے بیچ بیچ میں سے معلوم کرنا کہ ہم لوگوں کے حرف سمجھ میں آ چکے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ دیکھیے گا، اسے بتائیے گا بیٹا یہ کیا ہے؟ زوا۔ یہ بتائیے گا سا، ویری گڈ۔ اور آپ یہ بتائیے گا یہ کیا ہے؟ عین۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ نون۔ نون ہے، میم ہے، میم۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ اس کے بعد چلیے گا، انہوں نے بتا دیا مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں، یعنی جس طریقے سے الف کی دو شکل ہے، دیکھیے گا نیچے شکل آ رہی ہے سب کے میں۔ اب ان شکلوں کو پہچاننا ہے۔ شکلوں کو کس طریقے سے پہچانیں گے کہ الف کی دو شکل، آگے چل کر جو ہے الف اس طریقے سے آگے جا کر آئے گا۔ باقی کتنی شکل ہے؟ دو شکل۔ با اس طریقے سے پورے قرآن پاک میں، پورے قاعدے میں، پاروں میں اس طریقے سے وہ آئے گا، جس طریقے سے، کیونکہ ہمیں ان کی شکلوں کے ساتھ ساتھ پہچاننا ہے، نقطے اور شکل ہمیں پہچاننا ہے۔ تاکہ کتنی شکل ہے؟ تین شکل، ویری گڈ۔ تو تینوں شکل اس طریقے سے آئیں گی، سب کے قاعدے میں ہے۔ جیم کی کتنی شکل ہے؟ ایک شکل۔ دال کی، عین کی دو، فا کی دو، کاف کی دو، لام کی، میم کی، نون کی، ہا کی، حمزہ کی اور یا کی دو۔ اب ہم نے جو ہے یا تک سمجھ لیا، اب آگے چلیے گا۔ تختی نمبر 2، مرکبات الف لام۔ اب یہ جو دو حرف ہے، یہ دو لائن جو انہوں نے دی ہے با لام با تک، ان دونوں حرفوں میں سے ان میں ایک ضرور آئے گا۔ اس چیز کا خیال کرے گا کہ ان دونوں حرفوں میں جو انہوں نے گولا بنا کر رکھ دیا ہے، ان میں سے ایک حرف ان میں نیچے ضرور آئے گا۔ اب جیسے انہوں نے لکھ دیا الف، الف کے بعد لام۔ اب دیکھیے گا لام الف، آگے اس میں سے لام بھی ہے اس میں اور الف بھی ہے۔ جیم ان دونوں میں نہیں ہے مگر الف ہے، تو جیم الف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھو، جب آپ سمجھو گے تو انشاءاللہ جلدی پڑھ پاؤ گے، کیونکہ قاعدے کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، قاعدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھ لیجیے گا کہ الف اور لام ان دونوں میں سے ایک حرف ضرور آئے گا۔ اب اس میں جیم الف، الف اس میں سے ہے، آ گیا۔ لام الف، میم الف، آ رہا ہے نا اوپر سے، جو اوپر ہے وہی نیچے آئے گا۔ لام با لام لام جیم، جیم علیحدہ سے ہے لیکن لام ان دونوں حرفوں میں سے ہی ایک آیا ہے۔ لام جیم، لام 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 با با لام با، آ گیا۔ با علیحدہ سے ہے لیکن لام اسی میں سے۔ اس کے بعد آ گیا کاف کاف کاف، کیا ہے؟ اب نیچے چلیے گا، کاف با، ایک حرف آیا ان میں سے، ایک حرف آیا بچوں۔ کاف اوپر ہے تو وہ نیچے آئے گا، کاف با۔ اس کے بعد کاف تا، آ رہا ہے نا ایک حرف۔ کاف الف، کاف الف، با کاف، کاف آ رہا ہے نا ایک، با کاف تا، تا کاف سا، تا کاف سا۔ ان میں سے ایک حرف آیا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ہارڈ تو نہیں؟ سمجھ کر پڑھو، انشاءاللہ بہت جلدی اور اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے۔ محنت کرو، صرف محنت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور آپ جلدی بھی پڑھ سکو گے۔ اس کے بعد آ جائے گا جو گولے میں ہے، با تا سا نون یا۔
अब ये 5 हर्फ इन्होंने सामने रख दिए। अब इन 5 हर्फों में से बा अलिफ से लेकर और नून या नून तक इन्हीं में से आएंगे। एक न एक लफ्ज या दो लफ्ज इनमें से जरूर होगा। जैसे बा अलिफ, बा है इसमें, हाँ, तो अलग से क्या आया, अलिफ, बा अलिफ, ता सा नून या बा सीन। अब सीन तो नहीं है इसमें, लेकिन बा है, बा है ना, बा सीन या है या इसमें, हाँ, नून ता सा सा जीम ता हा। ठीक है, समझ में आ गई, क्योंकि या ये रहा, या है ना, नून ये रहा, ता ये रहा, सा ये रहा, सा ये रहा, और सा ये इस तरफ, ये ता सब चीज इस तरफ है। अब आगे चलिएगा, नून खा, नून खा, क्योंकि खा के ऊपर एक नुक्ता। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें जो है हर्फों को पहचानना है। अगर हम लोगों को हर्फ समझ में आ जाएंगे तो कायदा हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है कायदा पढ़ना, कायदा पढ़ना कोई हार्ड नहीं है, बस शर्त है कि समझकर और मेहनत के साथ पढ़ा जाए, है ना बच्चों, समझकर और मेहनत के साथ पढ़ा जाए। या हा, या बा जीम, बा मीम। जब हर्फ समझ में आ जाएंगे तो मालूम हो जाएगा ये कौन सा लफ्ज है। अगर समझ में नहीं आएंगे तो लफ्जों का पता ही नहीं चल पाएगा क्या है क्या नहीं। वरना देखो तो इनको इजी है, या हा बा जीम, जब लफ्ज याद होंगे, नुक्ते समझ में आएंगे तो हम बिल्कुल फटाफट पढ़ सकते हैं। बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, या या, नून या, ता या, सा या। अब आगे नुक्ते, तीन तीन लफ्ज वाले नुक्ते आ गए। अब अगर नुक्ते याद होंगे तो हम बता सकते हैं किसका नुक्ता कौन सा है। एक नुक्ता किसके ऊपर होता है, नून, नीचे किसके होता है, बा, और वो लाम। अब तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, नून बा लाम। आ रहा है समझ में, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, वेरी गुड, या ता लाम, सा लाम, उंगली रखो उंगली, सा लाम। समझ में आ गई, आगे चलेगा, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून, वेरी गुड। आगे समझ में, अब आगे चलेगा, जीम हा और खा, जीम हा और खा। अब आगे चलिएगा, जब इनमें ये देखिएगा जीम हा और खा तीनों की शक्ल एक जैसी है, मगर पहचाने किस वजह से जाते हैं, नुक्तों की वजह से। अगर बीच में एक नुक्ता आ जाए तो क्या बन जाएगा, जीम, क्या बनेगा, जीम, और नुक्ता हटा दे जाए तो क्या बनेगा, हाँ, और एक नुक्ता ऊपर लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गई। चलिएगा आगे, ये क्या है, हा सा, हा सा, खा बा, जीम ता। इनमें से आ रहा है ना एक एक हर्फ, इनमें से एक एक हर्फ आ रहा है, नहीं आ रहा अभी तक, हाँ, क्योंकि जीम हा खा इन्हीं में से एक लफ्ज जरूर आएगा। अब आगे चलेगा, दो नुक्ते, ता के ऊपर तो ता होगा। अब इनमें देखेगा तीनों में से किसके ऊपर नुक्ता नहीं है, हाँ, तो ये हा बनेगा, ता हा ता, या जीम बा, स्वाद हा बा खा ता। आगे समझ बच्चों, कोई हार्ड तो नहीं है, समझ जाओगे अच्छे तरीके से। चलिएगा आगे, ता हा हा। अब देखिएगा, ता और हा दोनों सेम है, छोटा हा और ता, बोलता और हा ये बिल्कुल सेम है, मगर पहचाने किस वजह से जा रहे हैं, नुक्तों की वजह से। अगर इस गोल ता के ऊपर से नुक्ते हटा ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, क्या बनेगा बच्चों, हाँ। तो इसीलिए हमें ये पहचाना, गोल ता और हा हा। अब आगे चलेगा, बा ता, क्या है, बा ता, या हा, ता हा, या हा। आपने क्या कहा, ता
मीम क्यों बता रहे हो? जब मैंने बताया था कि इनमें से ही एक आएगा। ता है इसमें, अब ये देखो ये क्या है, हाँ एक आना है, ता हाँ, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम। आ गए समझ में कि एक लफ्ज इनमें से जरूर आएगा। चलिएगा आगे, दाल, जाल, रा और जा, दाल, जाल, रा, जा। अब इनमें से चारों में से एक लफ्ज जरूर आएगा। और सबसे पहले क्या है ये, जीम। जीम इन चारों में से तो नहीं है, अलग से है जीम, लेकिन दाल है, जीम दाल, खा जाल, जीम रा, खा जा, या रा, ता जा, मीम दाल, काफ जाल, फा रा, मीम जा। समझ में आ गई? रा और जा, इसमें देखिए रा और जा बिल्कुल सेम होते हैं, मगर पहचाने कैसे जाते हैं, नुक्तों की वजह से। कहीं पर रा एक जैसा भी आता है, रा और जा, कहीं पर जा और रा एक जैसे आता है। आगे चलिएगा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, वा, ज़्वा। अब आगे चलिएगा, इनमें से एक हर्फ आएगा तो पढ़ते रहे फटाफट, सीन, लाम, शीन, लाम, स्वाद, बा, त्वा, बा, ज़्वाद, अलिफ, सीन, रा, शीन, काफ, ज़्वाद, या, ज़्वा, अलिफ। अब आगे चलेगा, आइन, गैन और हमजा। अगर इनको हाफ कर दिया जाए तो इनकी शक्ल एक जैसी हो जाएगी, इस चीज को और ख्याल करिएगा। आइन, गैन और हमजा। अब आइन और आगे जा, आइन जा, गैन रा, स्वाद आइन, ज़्वाद गैन, बा आइन दाल, ता गैन जाल, ये जाल है जाल, ता गैन जाल, हमजा, हमजा अलिफ, हमजा वाऊ, हमजा या। वेरी गुड, चलिएगा आगे, फा, ऑफ, वाऊ, मीम। अब इन चारों में से ही इनमें एक हर्फ आएगा। सबसे पहले क्या है, काफ वाऊ। फा और काफ इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, मगर पहचाने किस बिना पर जाते हैं, नुक्तों की वजह से, क्योंकि दोनों हाफ है, काफ वाऊ फा वाऊ, लेकिन दोनों सेम है। अगर नुक्तों की वजह से पहचाने जा रहे हैं, एक के ऊपर दो नुक्ते लगा दिए जाए और एक के ऊपर एक नुक्ते लग जाए तो वो चेंजिंग हो जाएगी, फा और काफ बन जाएगा। लेकिन काफ वाऊ, ये क्या है, काफ वाऊ, फा वाऊ, फा काफ लाम, काफ फा या हा मीम, काफ मीम। आगे अलिफ मीम लाम मीम। हाँ ये तो कंफ्यूजन है, अलिफ मीम या लाम मीम? लाम मीम। क्या है, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, कोई हार्ड तो नहीं है। अब फिर उन्हें इम्तिहान दे दिए, ये लिख दिया इम्तिहान, क्या दे दिया, इम्तिहान। अब जैसे हमने शुरू में अलिफ से लेके या तक पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने इम्तिहान दिया कि बीच बीच में से मालूम करना है, अगर आपको याद होगा तो आगे चलो, याद नहीं होगा तो फिर दोबारा बीच से याद कर लाओ। ये दे दिया इन्होंने इम्तिहान। अब हमारे अगर हर्फ और नुक्ते याद होंगे तो हम 1 मिनट में इसको भी हल कर देंगे। जैसे अलिफ, या, अलिफ काफ, नून सीन ता आइन या, नून, कोई हार तो नहीं। अब हमारे आपको कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से हम इस कायदे को पढ़ सके और जो सबक आपको बताया है इसको अच्छे तरीके से निकाल सके। करेंगे ना इंशाल्लाह? मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह फल देने वाला है। और दुआ करते रहा करो अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी पढ़ा दे, हमें अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से हमने आपको समझाया है उसी तरीके से मेहनत करो, इंशाल्लाह जल्दी पढ़ जाओगे। कोई
हार्ड भी नहीं है कोई भी चीज़। जिस चीज़ की आदमी कोशिश करे, मेहनत करे, तो अल्लाह ताला उसका अजर भी देता है, फल भी देता है। तो इंशाल्लाह करोगे ना मेहनत? इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर तख्ती नंबर 3 बताएंगे हरकत के बारे में। इंशाल्लाह रोज़ाना एक एक दो दो तख्ती बताते रहेंगे, ताकि आप लोग भी सही चलते रहें, आप भी पढ़ने वाले बन जाए। और जितने भी हमारी माँ बहन भाई जितने भी हमारी वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह वो भी अगर हमारी वीडियो को इन आखिर तक देख लेंगे, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो भी अच्छी तरीके से कुरान पाक सीख सकेंगे और अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना बहुत है, हर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। लेकिन अगर उन बच्चों के मोबाइल के ज़रिए अच्छी चीज़ सामने आ जाए, तो वो बेहतर बात है। क्योंकि बच्चे होते हैं रो धिड़क के किसी भी तरीके से मोबाइल ले लेते हैं अम्मी अब्बू से। लेकिन वो क्या देखते हैं, गाने वगैरह, छोटी-छोटी बातें, बहुत सारी बातें देखते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ से उनका ज़हन हटकर कायदे की तरफ, कुरान की तरफ लग जाए, दीन की तरफ लग जाए, तो इंशाल्लाह वो बच्चे सीधा रास्ते पर आ जाएँगे। ठीक है ना? इंशाल्लाह करोगे मेहनत? इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तमाम साथियों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ खैर में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल या परसों में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएँ।